Good morning, students. This is your Divya ma'am. Today I am here with a new topic, that is my shadow. What is the meaning of shadow? The meaning of shadow is परछाई. My shadow, मेरी परछाई. So let's start the lesson. First of all, we recite the poem with proper rhythm and proper stress. Okay, now I am going to recite the poem. My shadow. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. Buttercup is the name of a flower. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. The poet of this poem is Robert Louis Stevenson. Again, I am telling that Robert Louis Stevenson. And let's summarize the topic. Let's summarize the poem in few lines. This poem, Robert Louis Stevenson said that everybody has a shadow. Everybody has a shadow. It resembles a human being and behaves like a child. And what does it do? It resembles a human being and behave like a child. The shadow follows where the person goes. The shadow is always behind the person, never comes in front. जो छाया है वो हमेशा व्यक्ति के पीछे रहती है, कभी आगे नहीं आती, लेकिन उससे एक तरह से गेम खेलती रहती है. कभी अपना साइज़ बड़ा कर रही है, कभी वो छोटा कर रही है. जस्ट लाइक अ चाइल्ड इट बिहेव एंड इट फॉलोज द पर्सन वेयर द पर्सन गोज. ये हर समय व्यक्ति के साथ रहती है. और नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज इंडिया रबर बॉल. A ball that can bounce very high. Buttercup. As I told you before that buttercup is the name of a yellow flower. Errant. Errant means bad. Errant sleepyhead. That means completely inattentive. And now you can see the buttercup in the picture here. Buttercup is a yellow colored flower. Okay, these are some questions of your English book, this chapter also. First question is, who do you think your shadow looks like? Who do you think your shadow looks like? किसकी तरह लगता है कि तुम्हारा छाया दिखाई देता है? I think my shadow looks exactly like me. I think my shadow looks exactly like me. मुझे लगता है कि मेरी परछाई जो है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा शैडो जो है तुमसे पहले ही बेड पर कूद जाता है? तो इसका आंसर है द शैडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट अपीयर्स फास्टर देन लाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माई शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर आई कैन. थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि छाया जो है वो एक कोई फिज़िकल थिंग नहीं है और बहुत फास्ट अपीयर होती है. ठीक है ना? तो इसलिए इसको लगता है बच्चे को कि जो मेरी परछाई है वो मुझसे पहले ही जंप कर गई है बेड पर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट? वाई?
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सबसे तुमको क्या लगता है कि कौन से टाइम तुम्हारी जो परछाई है वो सबसे लंबी होती है और क्यों? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। तो इसका आंसर होगा मॉर्निंग टाइम। वाई? आवर शैडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। इट इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लैंटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। सूर्योदय के समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग पोजीशन में होती है, मतलब तिरछी होती हैं। तो तिरछी होने के कारण, उस रोशनी के कारण जो छाया जो होती है वो मॉर्निंग टाइम में सबसे लंबी बनती है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। यहाँ देखो शैडो का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, जैसा मैंने क्लास में बताया था। तो इसका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। हु डज ही रेफर टू? तो ही रेफर्स टू द शैडो, है ना। हु डज ही रेफर टू, पहला क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू, ये फर्स्ट। और इसका आंसर है कि ही रेफर्स टू द शैडो। ही रेफर्स टू द शैडो। हु डज मी रेफर टू? इस लाइन में मी किसको कहा गया है? तो मी रेफर्स टू द पोएट। मी जो है वो पोएट को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई आर ही एंड मी अलाइक? इसका आंसर होगा कि ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। क्योंकि जैसा पर्सन होता है वैसी ही उसकी छाया भी बनती है। इसके बाद कुछ को एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया है और डिस्कस करने कहा गया है। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास। व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेसेस यू? तुम क्या करोगे जब कोई कुत्ता जो है वो तुम्हारा पीछा करता है? पहला कंडीशन है, हियर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो है, परिस्थितियां हैं वो यहाँ दी गई हैं। उसे हम लोगों को डिस्कस करना है और आंसर लिखना है। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेसेस यू। सेकेंड कंडीशन इज यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। And the third condition is you are alone in a room and the lights go out. So let's see how to deal with the situation. Okay, if a dog chases me, I would not run and instead walk slowly. अगर कुत्ता पीछा करता है तो भागना नहीं है, वहाँ चुपचाप धीरे धीरे चलना है। सेकंड कंडीशन था कि अगर कॉपी छूट जाती है तब क्या करोगे? इसका सिंपल आंसर है कि यू वुड tell it to your class teacher. You will tell it to your class teacher. Yeah, I would apologize to my class teacher about it. थर्ड है कि अगर रूम में बंद हो, यू रूम में अकेले हो और लाइट चली जाती है तो क्या करोगे? तो इफ़ आई एम अलोन इन माई रूम एंड लाइट्स गो आउट, आई वुड लाइट अ कैंडल। तब मैं कैंडल जला लूँगा। ये आपकी एक्टिविटी शीट है। होप बहुत सारे बच्चों ने करके भेज भी दिया है मुझे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एकदम लिमिटेड टाइम पीरियड में से कर लेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये मैंने होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों की कॉपी मिल चुकी है मुझे। ओके, नाउ हियर यू हैव टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। Write a few lines on Mittu and his little dog named Shadow. The first question is, what do you think is the name of the dog? What do you think is the name of the dog? So answer is given here. I think Shadow is the name of a dog. Second question is, why is she called that? Why the dog is called Shadow? तो आंसर इसका हो सकता है कि she is called Shadow because I think she follows Mittu exactly like a shadow. उसका नाम शैडो परछाई इसीलिए होगा क्योंकि वो मिट्ठू को, जो उसका मालिक होगा, वो उसको बिल्कुल परछाई की तरह फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कलर इज शी? तो इसका आंसर होगा शी इज़ ऑफ ग्रे और ब्राउन कलर। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली? तो येस आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज शी लाइक टू ईट? तो इसका आंसर होगा शी लाइक्स टू ईट बोन्स एंड मीट।